This is going to be a very, very hotly contested battle. Punjab University up against the might of the defending champions. गॉथकोथ रैक और इनके साथी खिलाड़ी ने बुलाते हैं प्यार से पीटर। ये बढ़ा पाएंगे, राहुल के पास 2 पॉइंटर के लिए जाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। ये संजीव, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Virender, and of course we are off to a flying start. तेजी से आगे निकले हैं करणदीप सिंह सिद्धू और 2 अंक हासिल भी कर लिए हैं। What a great switch. Shimming to the left, to the right. It skims off and he gets the point. Important point there. Looking to up the ante. And he does it well. They're trailing 20-24. Going for the dunk. And of course he does. Another 3-pointer. And this time Punjab very, very quickly they change it. Wahab Hossaini. And Wahab Hossaini does it well. अब आगे बढ़े गॉथकोथ रैक। Dheeraj Reddy trying a lot of counters there, and finally Shubham Singh. दूसरे क्वार्टर में 15 जैन यूनिवर्सिटी और 18 है पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या 3 पॉइंटर के लिए जाएंगे या 2 के लिए? 2 की कोशिश और ये ओवरहेड शूट। मौका एक बार फिर जैन के लिए। इस बार कोई गलती नहीं की है। Rhythm trying to take the guard off for Nawaz, and of course Nawaz does. It's a water snatch. Wahab Hossaini, and of course Nawaz does it. Nawaz does it. But full credit for this dunk. Nawaz, quick pass there. Karambir, and he does it with the line. Chuck there, Pate quells the challenge. And there you see Karandeep. Wow. पास कर दिया है 3 पॉइंटर और सक्सेसफुल 3 पॉइंटर यहां पर आते हुए। Taken away, Nawaz. Lovely pass. Wahab Hossaini. Oh, a pass. Pass is quickly taken over. Another snatch. He missed it. And that's it. पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने यहां पर फाइनल में प्रवेश किया है। सेमीफाइनल का यह मुकाबला। लड़कों के वर्ग का सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। रोशन पांचाल राजस्थान की ओर से पिक करने के लिए तैयार हैं और विजय कुमार यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के लिए। Roshan Panchal, who squares it off, comes off the rim. Dilly Dally. Madras still waiting. University of Madras waiting for the first point. Does it? Pings the bar. Comes off. The rebound goes in. मौका भी और 2 अंक और यहां जुटाते हुए। Good drive in there, forcing that attempt. High degree of difficulty with that attempt. Going for the dunk. A lovely pass. Another shimmy in midair. And what a terrific conversion there. High traffic zone pass. Probably not the best pass. What a move, what a move, what a finish. सही खेले, पूरा टाइम लेके अपॉर्चुनिटी बनाए और यहां पे तिक्का जड़ा इन्होंने 45 से। ब्रिलियंट हासिल वहां पे जिसे कहेंगे, रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज किया भी उन्होंने और अनफॉर्चुनेटली पूरी स्टेडियम में हलचल की क्या बॉल अंदर जाएगी। अभी भी मौका। ये 2 पॉइंटर के लिए गए, ओवरहेड शूट के लिए। गुड आउटपुट। And yes, he does. A pull-up step 3. चौथा क्वार्टर है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले और ये अब लीड मिलेगी इस बार ओवरहेड शूट के जरिए। And Mahavir are going to make Rajasthan win. Probably yes. Sharan with a nice move to the basket. 3 पॉइंटर ही चाहिए, 3 अंक हासिल करने होंगे। क्या होंगे? जी नहीं। इसी के साथ हुटर की आवाज और फाइनल में यहां पहुंच गई है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की टीम। फाइनल का टिकट हासिल किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने। And today we have a semi-final lineup. GNDU in the dark blue taking on Madras University in the light blues. All set for the ball toss, jump ball as we call it in basketball. First possession, University of Madras, easy layup, registering their names on the scoreboard. They just ran out of steam. Here's Priyanka on the ball. Good conversion. 3-on-2.
Priyanka with a nice move to the basket will be upset on missing the first attempt, but gets an opportunity to put it back. There you see, missed it on the first account, but a good rebound. And with that, we come to the end of the first quarter, 28-10. इस बार तेजी से आगे निकली हैं अश्मिता। मौका है यहाँ पर 2 अंक बटोरने का और बटोर लिए हैं। Nice smooth move to the basket and is rewarded. University of Madras, or Madras University, is able to hit the triple-digit mark. I think if they continue on the same rate of scoring that they have been scoring through and through. चौथे क्वार्टर का ये खेल है। ये दिलचस्प होगा देखना क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की लड़कियां 100 का आंकड़ा छू पाएंगी। और ये शुरुआत की है कृतिका ने। 99 पर जा पहुंचा है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का स्कोर। और अब इसी के साथ ही सैकड़ा पूरा, हाफ सेंचुरी पूरी करनी है अगर जीएनडीयू को, तो यहां तेजी से अंक बटोरने होंगे। और ये 2 अंक तो बटोर लिए हैं। क्या आखिरी प्रयास होगा? बहुत बढ़िया, अक्षरा का 2 अंक और यहां जोड़ते हुए पहला सेमीफाइनल 48 के मुकाबले 105 अंकों से जीत लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की इन लड़कियों ने। It's the Jain University women's team versus the HITS team battling it out in the second semi-finals. Helen with the first touch. Nice move to the basket from 45. And first conversion, registering their side. Good pass there. And the outcome. Fast break opportunity, 2 seconds left. Naomi releases and sets in the 3. खूबसूरत पास लपक लिया है उसको कैप्टन ने। और यहाँ 2 अंक मौका है यहाँ पर रूथ एना बेल्सन के पास, और इस मौके को भुनाने में कामयाब रही हैं। Again the snatch on the stroke of the breather. Naomi scattered in under the net, and does she do? Which will bring us to a fascinating finale. But before that, again another perfect take there. Tavleen, Sia hits the rim. Helen with the rebound, and she gets it. Helen and pings it back in, and they'll want more of that. They want more of that. Good outlet ball, open look to the basket. No mistakes there. They are trying and they're giving it their all. And on this time, getting the roll from the ring. Pull-up jumper from way outside. Deodarsia. Because they have a third place match to fight for. And that's a very, very well done. 83-61. Possibly the last attack of this game. Second last, one would say. Pings off the bar, Netra Rawat with the rebound, ensuring that Jain University have won the semi-final. जी हाँ, आज का सबसे बड़े मुकाबलों में से एक डॉक्टर बाबा साहब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी बात करें भिड़ेगी आज यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जो कि सेकेंड सीजन की अगर बात करें गोल्ड मेडलिस्ट से। मैच के आपके रेफरी नजर आ रहे हैं इस समय दामोदर टेलीविजन स्क्रीन पे। और जी हाँ, पहला रेड लेकर के बड़ा मुकाबला है। रेड की कमान लेकर के इस समय रेड कलर की जोशी में 2 नंबर की जोशी के खिलाड़ी जावेद पठान। पहली रेड 7 का फुल हाउस इस समय लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में। कोटा का डिफेंस इस समय देखे, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर के साथ लगातार इस समय सफलिंग कर रहे हैं रेड। जावेद पठान आए हैं रेड की कमान लेकर के। निगाहें रहेगी जावेद पठान पे, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। और शुरुआत की है उन्होंने रेड की डिफेंस को सिर्फ भांपने की कोशिश। राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पूरी तरीके से चेन में है। जैसे नंबर 11 रेड की कमान लेकर के आए हैं समय कोटा के लिए। थोड़ा सा जरूर एडवांस टैकल आर्यवर्धन नावले
सो एवरी डे आपको सेम माइंडसेट से मैच में आना पड़ेगा कि आप कैसे एवरी सिंगल सेकंड के लिए आप फाइट दे सकते हो। वाह, बहुत अहम बात कही है रानी ने। वाकई में जो इनका एक्सपीरियंस है और गेम प्लान है, जो इनकी स्ट्रैटेजी है, जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में, बड़े बड़े स्टेज पे हॉकी में और भारत का गौरव बढ़ाए। फिलहाल नजर डालेंगे कोटा यूनिवर्सिटी 25 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जोशी नंबर 4 आए हैं मंजीत। हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदला है, क्या तस्वीर बदल पाएगी? अच्छा काम किया रेडर ने, पैर को बहुत अपने रीच का इस्तेमाल किया खूबसूरती से। फिलहाल डू और डाई रेड इस समय। Yeah, I think Vikas Rani is given the hint very strongly to Baba Saheb Ambedkar team. You need to change your body, your attitude right now in the field. You need to gear up into action and do not look at the score line so far. कोटा 36 पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 31 पे। आखिरी मिनट के कुछ सेकंड्स का खेल शेष। कोटा फाइनल में पहुंचने के सिर्फ एक कदम दूर नजर आ रही है टीम। 4 का डिफेंस में खलबली मचाई, ब्लॉक करना चाहा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है, लेकिन ये अभी कोटा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे अभी जो हमने एक्शन देखा, सो बहुत डिफिकल्ट चांसेस हैं क्योंकि अभी 15 सेकंड सिर्फ बचे हैं मैच में। फिलहाल देखना होगा इस समय 37-32 अब लगभग कोटा मनीष यहाँ पे सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में दावेदारी करने के बेहद नजदीक है। फाइनल विसल ब्लॉक करने आए, ब्लॉक करने का प्रयास, बॉडी को टर्न किया हल्का सा और मिड लाइन क्रॉस किए। कोटा पहली टीम बन गई है मेंस कैटेगरी में फाइनल में दावेदारी सुनिश्चित करने वाली। एक तरफ अगर देखें चौधरी बंसीलाल रेड कलर की जर्सी में है, मैंगलोर यूनिवर्सिटी आपकी स्क्रीन की दाहिनी तरफ। और देखिए पहली रेड जिसकी मैंने जिक्र की, पहली रेड आखिरकार आ गई है मैंगलोर यूनिवर्सिटी के लिए। जोशी नंबर 3 रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय शशांक। देखना होगा शशांक पे निगाहें रहेगी। 7 का डिफेंस फुल हाउस, बोनस ऑन है और बहुत अच्छा स्ट्रेच करके पैर लोअर बॉडी के सहारे टो टच करने का प्रयास, राइट कॉर्नर राइट चीन के बीच। और पहला रेड इस समय अगर देखें एक गुड एम्प्टी रेड, यकीनन तौर पे दूसरे रेड पे फिलहाल नजर रखेंगे। बहुत ज़्यादा एडवांस टैकल था, मिड लाइन के बेहद नज़दीक, हल्का सा थोड़ा सा बॉडी को सिर्फ टर्न किया। ये डू और डाई रेड है, यानी 2 रेड खाली हो जाए, तीसरी रेड अनिवार्य हो जाती है। और डिफेंस यहाँ चौधरी बंसीलाल का, जोशी नंबर 8 ने कमाल किया है, वहाँ साहिल ने। 17-16 यानी कि मात्र 1 पॉइंट की लीड में है इस वक्त मैंगलोर यूनिवर्सिटी। यकीनन तौर पे बहुत ज़्यादा एडवांस टैकल का प्रयास था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा टैकल किया है जोशी नंबर 11 ने। आज प्रज्वल की तारीफ करनी होगी। जी बिल्कुल टफ होता है। मैं एज अ प्लेयर मैं आपको खुद बता सकती हूँ कि जैसे मैंने बताया 40 मिनट के मैच के लिए आपको 1.5 घंटा 4 घंटे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने रेड की बात की कि रेड जो है 70-80 रेड एक प्लेयर करता है, मुझे लगता है उसको प्रैक्टिस में जो मोर देन 150 से ज़्यादा रेड उसको करनी पड़ती होगी ताकि वो मैच में वो जो उसके लिए 70 उसको इजी लगे करने के लिए। जी बिल्कुल, आप सामने देख सकते हैं कि मैंगलोर यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनल्स में पहुंच चुकी है और इनका जो मुकाबला होगा वो कोटा यूनिवर्सिटी से होगा। सो हमारी तरफ से मैंगलोर यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई फाइनल्स में पहुँचने के लिए। Chaudhary Bansilal scored 16 points, but they could muster only 10 points in the second half, whereas Mangalore University's started with 17 points and सेमीफाइनल के यह मुकाबले हैं। भगत फुल सिंह महिला यूनिवर्सिटी 3 में से तीनों मुकाबले जीत कर आई है और भारतीय विद्यापीठ 2 मुकाबले खेले, 1 जीत और 1 हार के साथ। वुमेन्स का यानी महिला वर्ग के सेमीफाइनल की पहली रेड लेकर के बड़ा मुकाबला रहेगा। 7 का डिफेंस में इस समय जोशी नंबर 7 रेड की कमान लेकर के इस समय। बहुत दिलचस्प मैच है, बहुत कुछ निर्भर करेगा इस समय
भगत फुल सिंह यूनिवर्सिटी के लिए रेड लेकर आई हैं, जो कि बहुत ही शानदार रेड के लिए जानी जाती हैं। भातेरी पे निगाहें रहेगी 7 के डिफेंस में, और जी हाँ 2 पॉइंट्स पे पहुंच गई है। और अब रेड की कमान पल्लवी संतोष लेकर के, पल्लवी संतोष क्या खूबसूरती से टर्न किया, ट्विस्ट किए, और पल्लवी संतोष गावड़े ने आखिरकार पॉइंट दिला दिए इस समय विद्यापीठ पुणे के लिए। और हाफ टाइम से पहले का बामुश्किल हो सकता है 1 या 2 रेड और आए। क्या जबरदस्त मैच है यहाँ पे। एक बार फिर से देखिए रेड और रीच का इस्तेमाल करके निकली है। देखिए 18-18 का ये स्कोर, ये इस बात की गवाही है क्या अद्भुत कबड्डी दिखा रही दोनों टीमें। और फिलहाल सेकेंड हाफ के पहली रेड लेकर के यहाँ से, जी हाँ रेड अब आने वाली है भारतीय विद्यापीठ पुणे की। चौसी नंबर 9 वही खिलाड़ी जिनका आप लगातार ये रेड देखते रहे हैं, प्रियंका मांगले को रेड की कमान लेकर के इस समय सेकेंड हाफ की। बहुत अच्छा प्रयास, क्या कहने, इस बार लेफ्ट इन को हिलने तक का मौका नहीं दिया। कि फिलहाल रेड आ चुकी है इस समय एक बार फिर से लेकर के जर्सी नंबर 2, ये वो खिलाड़ी है अंशु। फिलहाल फासला 4 पॉइंट का है इन फेवर ऑफ विद्यापीठ। और बहुत अच्छा टैकल, ये टीम पहले एंकल पे गई, चेन लेकर आए राइट कॉर्नर से भारतीय। जी हाँ ये मुकाबले के हो सकता है कि आखिरी रेड हो। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन एक और पॉइंट, क्योंकि यहाँ मल्टी पॉइंट लीक नहीं करना चाहेगी टीम। अब लगभग मुकाबले में रिप्ले पे नजर डालें, एंकल होल्ड का प्रयास था। आखिरी रेड प्रियंका स्टार रेडर, जीत की अहम कहानी लिखी इस खिलाड़ी ने। रेड डिपार्टमेंट में फ्रंट से लीड किया एक, और जी हाँ फाइनल विसल इस बात की कहानी है कि यह मुकाबला अपने नाम कर लिया भारतीय विद्यापीठ ने। देखिए पहले हाफ में स्कोर 18-18 की बराबरी पे था। वहाँ कई बार हमने फुल सिंह यूनिवर्सिटी को भी डोमिनेट करते देखा, लेकिन अंतर कहाँ पैदा की 15-21, यानी कि सेकेंड हाफ वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस नजर आया। रेड डिपार्टमेंट इतना स्ट्रैटेजी खेली प्रियंका। स्विमिंग के मुकाबले शुरू हो गए हैं और सबसे पहले 1500 मीटर फ्री स्टाइल पुरुषों के वर्ग में शुरुआत हुई है। आपको जल्दी से बता दें, लेन नंबर 2 में उत्कर्ष निगम, लेन नंबर 3 में लिथीश गौड़ा, 4 में है विक्रांत बांगले, 5 में अनीश गौड़ा जिस पर सबकी निगाहें होंगी, 6 पे अन्वेश सिंह और 7 में रुहनु कृष्णा। बांगले के साथ लिथीश गौड़ा इस समय दूसरा पोजीशन होल्ड कर रहे हैं विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। लेन नंबर 7 रुहनु कृष्णा एक तरफा अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, और अब लेन नंबर 4 में विक्रांत बांगले दूसरे पोजीशन पर चले गए हैं, सिल्वर मेडल की पोजीशन पर इस समय। लाजवाब शुरुआत, और ये शुरुआत नहीं है, ये आधा सफर तय हो गया है, यानी 750 मीटर पूरे कर लिए हैं रुहनु कृष्णा ने 21 लैप के बाद। वो है 11 मिनट 39 सेकेंड से कुछ ऊपर की। अब भी 5 मिनट का समय उनके पास है उस अपने नेशनल गेम्स गोवा के टाइमिंग में सुधार करने का, लेकिन गोल्ड मेडल लगभग पक्का। यहाँ से कहना बहुत कठिन हो गया मिलिंद, चूंकि इतना ज्यादा लीड उन्होंने बना ली है। And there is the champion of the 1500 meters for men, 16 minutes 28.32. The women's 400 meters medley, and there's the lineup for you. Shruti Godse in 1, Pratyasha Ray in 2, Antara Datta in 3, Firdaus Kayam Khani in 4. और शुरुआत हुई है बटरफ्लाई के साथ, और फॉर्म की बात करें तो प्रत्याशा रे लेन नंबर 2 पे नजर बनाए रखिएगा। अभी इंटर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। पहले 50 मीटर में कौन पहला फ्लिप लेगा? लेन नंबर 2 यहां से नजर आ रहा है प्रत्याशा रे। Yes, the first to turn there is Pratyasha Ray at the 50-meter mark. Close to 36 seconds is what she's achieved out here. She is in 8, but she's fallen behind. The resolve is with Ray. She virtually turns first out there. Very quickly in 4 also was Firdaus. She goes great guns out here.
Pratyasha, as Anand just mentioned, is struggling. But remember, she's got a fast in the freestyle. So if she does manage to break that hoodoo of half a body length, she might be in with a chance towards the end. गोल्ड मेडल 400 मीटर में लेखा गया है कल्याणी अजय सक्सेना के नाम। .200 meters backstroke for men. We're looking at some of the favorites out here. I suspect PJ Dhanush, a silver in the 200, Jatin, a bronze in the 100 back. बड़े दावेदार हैं जीत के और धनुष के साथ जतिन बीबी जो ले नंबर 7 में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। They've allowed their hand there, following a semicircular path. That's the path that they are the first to turn there. Was it 4? शुभाशीष जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था, इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद वो लीडर बोर्ड में पहले पोजीशन पर हैं। लेन नंबर 1 में शुभाशीष डे। Yes, absolutely. Now look at the mid phase, which consists of pushing the palm of the hand as far down as possible with the fingers. Watch them there pointing upwards. Again, the goal is to push the body forward against the water. लेन नंबर 7 पर भी नजर बनाए रखिए। जतिन बीबी भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। 150 मीटर के बाद निश्चित तौर पर एडमास यूनिवर्सिटी के शुभाशीष डे ने इस 200 मीटर बैक स्ट्रोक में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। Look at that recovery phase. The hand is rotated so that the palms point towards the leg. Surely, for sure, it is Shubhashish De from the Adamas University takes the gold and takes it in style. सुभाशीष डे के नाम गोल्ड मेडल। .200 meters backstroke for women. 1 is Antara Datta, 2 is Nilanjana Seal, 3 is Kalyani Saxena. That's the start in 8 Shweta. Look at Saxena, look at Pratyasha Ray 3 and 5. जी हाँ बिल्कुल। लेन नंबर 7 पर नजर रखिए। जो भक्ति हैं वो भी भारती इस समय कड़ी चुनौती दे रही हैं, लेकिन लेन नंबर 4 और लेन नंबर 5 का पहला फ्लिप आता हुआ, यानी प्रत्याशा रे ने 50 मीटर के बाद पहला फ्लिप लिया है। She's sinking one arm slightly under the water and turning the palm towards the start and the catch phase. कोई कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। जिस ढंग से स्टार्ट किया फिनिश भी उसी ढंग से करना चाह रही हैं। That's a favorite event. Remember, she's won the gold in the 100 meters back yesterday, gliding on a runway 37 at Mumbai Airport. भक्ति वाडकर के नाम गया था सिल्वर मेडल। वही कहानी 200 मीटर बैक स्ट्रोक में यहां दोहराई गई है। प्रत्याशा रे उत्कल विश्वविद्यालय की, उन्होंने जीत लिया है 2 मिनट 30.95 सेकंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल। So coming up now is the 50 meters breaststroke for women. The lineup is in 1 is Bala Ponike, in 2 is Vasupali Naga, in 3 is Rishika Bodle. 50 मीटर नजरे टेलीविजन स्क्रीन पर बनाए रखिएगा। पलक झपकते रेस फिनिश हो जाएगी और विजेता का फैसला होगा। स्टार्ट मिल गया है यहां पर और स्टार्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि लेन नंबर 5 में आरती पाटिल स्लाइट एडवांटेज पर हैं। 5 and 4, Jyoti and Aarti going strong out there. It is 5 at this point of time. In lane number 3 also, Rishika Bodle. Lane number 4, Jyoti Patil. Who's going to take it? In the inside out here, in lane number 2 is Vasupali Naga strong also. वासुपली नागा इस समय गोल्ड मेडल के करीब, गोल्ड जाता हुआ। यहां पर वासुपली नागा को क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। वासुपली नागा 34.78 सेकेंड की टाइमिंग के साथ उन्होंने जीत लिया है यहां पर गोल्ड मेडल।
50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल लड़कों का आ रहा है और पहले पर हैं रोहित, पहले लेन नंबर 1 में, 2 में हैं श्वेजल, 3 में हैं जयप्रकाश, 4 में हैं धनुष, सुरेश, 5 में हैं पृथ्वीराज। Going in for the breast now. First 20 meters. Very clearly, it's 4 and 1. Going wonderfully well out there. लेन नंबर 8 पर नजर रखिए, DS पृथ्वी, उन्होंने भी बढ़िया स्टार्ट लिया है। लेन नंबर 2, यहां पर लेन नंबर 2 श्वेजल इस समय टफ कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन लेन नंबर 4 एस धनुष क्या बाजी मार ले जाएंगे? बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। एस धनुष गोल्ड मेडल अपने नाम करते हुए यहां पर 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एस धनुष के नाम यहां पर जा रहा है। एस धनुष 28.66 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। Now looking at the 50 meters butterfly, known as the fly. In lane 1 will be Sonia Patel. In 2 will be Snigdha Ghosh. In 3 will be Srishti Upadhyay, one of the 4 favorites. स्टार्ट 50 मीटर बटरफ्लाई, और यहां से इस समय कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। कौन आगे निकल रहा है? क्या लेन नंबर 4 उत्तरा गोगोई, लेन नंबर 2 पर नजर रखिएगा स्निग्धा घोष, लेन नंबर 2 बहुत करीबी मामला है। स्निग्धा घोष क्या अपनी इस मामूली बढ़त को गोल्ड मेडल में बदल पाएंगे? स्निग्धा लेन नंबर 2 में गोल्ड मेडल के करीब, स्निग्धा को मिलेगा गोल्ड मेडल। यहां पर 28.90 सेकंड के साथ स्निग्धा ने जीता है गोल्ड मेडल। सृष्टि उपाध्याय के नाम किया है सिल्वर और ब्रॉन्ज उत्तरा गोगोई। So that's the list for you. G Vishnu is in 1. Rohit Benedictine is slated to be in 2, but I don't think he is here in Guwahati. लेन नंबर 1 में है विष्णु, लेन नंबर 4 में हर्ष सरोहा। ये मुकाबला शुरू हो गया है 50 मीटर बटरफ्लाई। देखना होगा कहां आएगी बढ़त, किसके सर सजेगा ताज। कंपटीशन टफ है यहां से। 5 it is, 4 as well. 4 is Harsh Sarwa. Dhanush in 5. Harsh Sarwa in 4. It is Harsh Sarwa. Half a body length takes it away in 1 as well. हर्ष सरोहा के नाम गया है गोल्ड मेडल। 25.20 सेकंड के समय के साथ उन्होंने जीता है गोल्ड। जी विष्णु के नाम सिल्वर मेडल, 25.47 सेकंड की टाइमिंग, और वीर के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल, 25.74 सेकंड की टाइमिंग।